Assalamu alaikum. Sixth class. We start your English book tomorrow and read the lesson Siratul Nabi. Today we do exercise. It's exercise. We do the first question of exercise. Read and practice the dialogue below. David, Assalamu alaikum, sir. How may I help you? डेविड कहता है अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी उससे कहता है वालेकुम अस्सलाम, माई शॉपिंग बैग टूर ओपन ऑन द रोड साइड, कुड यू प्लीज़ मेरा जो है शॉपिंग बैग, मेरा जो जिसमें मैं शॉपिंग करके लाया हूँ वो बैग मेरा रोड सड़क पर फट गया है, आप कोई मेरी मदद कर सकती हैं? डेविड, डोंट वरी सर, आप परेशान ना हो, आई विल ब्रिंग अ न्यू बैग इन अ few minutes and put all these fruits in it. आप परेशान ना हो, मैं चंद मिनटों में आता हूँ और आपकी चंद मिनटों में वापस आता हूँ और आप नया बैग लेकर चंद मिनटों में नया बैग लेकर वापस आता हूँ और उसमें आपके तमाम फ्रूट डाल दूँगा. ओल्ड मैन, थैंक यू सन, शुक्रिया बेटा. व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? डेविड, माई नेम इज़ डेविड, मेरा नाम डेविड है. ओल्ड मैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ओल्ड मैन कहता है, बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? डेविड, ओ नथिंग सर, ओ नहीं, कुछ नहीं सर. आई लाइक टू हेल्प अदर्स बिकॉज अल्लाह सुब्हाना ताला हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स, क्योंकि मुझे दूसरों की मदद करके बड़ी खुशी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला उन बंदों से प्यार करता है जो दूसरों की मदद करते हैं. ओ ओल्ड मैन, यू आर राइट डेविड, तुमने सही कहा डेविड. आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क, मैं अपने काम से लेट हो रहा हूँ. प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करिएगा सर. प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी सर. ऑल यू फ्रूट और इन दिस बैग, आपके जो सारे फ्रूट हैं इस बैग में हैं. डेविड, अल्लाह हाफिज़. अच्छा, फिर ओल्ड मैन उसको कहता है, ओल्ड मैन थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़. डेविड, अल्लाह हाफिज़, वो कह के ये चला जाता है. कि हमने रीडिंग कम्प्रीहेंशंस, रीड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस. Make sentences. Reliability is very important in friendship. Surmounted क्या है? Ali was surmounded in the court. अच्छा, clock. I bought a new clock for his Eid. आगे है stauncher, we have a stauncher believe out fate. On fate, we stauncher, we have a stauncher belief on fate. Next question is, answer the following questions. Which tribe did Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam belong to? कि आप खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से ताल्लुक़? आगे, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम belong to a tribal named
Quraysh. What did Misra report about Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam to Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala Anha? Misra reported everything about Rasulullah Khatam Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul's honesty and intelligence to Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala Anha. Why did Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala Anha send a marriage proposal to Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam? Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala Anha sent a marriage proposal to Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam because she was impressed by his nobility, honesty, and strong character. What did Abu Sufyan testify about Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Sufyan testified that the Rasulullah Khatam Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam possessed extremely qualities of honesty and trustworthiness and protected on honesties of Allah. Describe any one incident from the life of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam which shows his sense of justice and fairness. Once a woman from Bani Makhrum was found guilty of theft. Some prominent members went to the Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam to save her from punishment because of her high status. The Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam refused to forgive her crime and punished her. Vocabulary. Compound words. A compound word is made of two words. Each word has two own meaning, but when we put them together they give a new single meanings. इसमें उन्होंने बताया है बच्चों कि जैसे हम एक कंपाउंड वर्ड होता है उसके सिंगल वर्ड जब हम बोलेंगे तो उसका एक अलग मतलब होगा और जब उसके साथ दूसरा वर्ड अटैच कर देंगे तो वो दूसरा मायने देगा. जैसे एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हुई हैं वर्ड्स और वर्ड्स. ये वर्ड्स हैं जैसे स्नो का मतलब होता है बर्फ़ और फ्लेक का मतलब होता है क्रिस्टल. स्नो फ्लेक्स, फ्लेक का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े और स्नो फ्लेक्स जब हम करेंगे तो स्नोफॉल्स के मानों में ये आएगा. स्नोफॉल यानी बर्फ़ के गोले इसको कहेंगे. बैक का मतलब है पीछे और वाइट का मतलब है काटना. और यहाँ अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बैक का मतलब है दूसरे के पीछे किसी की बात करना, पीठ पीछे बात करना या चुगली के मायनों में आएगा. कॉपी करना यानी नकल करना. और राइट सीधे को भी कहते हैं और इस तरह इसके और भी बहुत से मतलब हो सकते हैं. कॉपीराइट जब इसको इकट्ठा लिखेंगे तो कॉपी करना यानी कॉपी करके लिखना यानी उसकी नकल करके लिखना. इसको हम बोलेंगे. आगे है फिर बच्चों रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड एनसर्कल द कंपाउंड वर्ड्स. माय finger
माई फिंगर नेल इज़ ब्रोकन। फिंगर नेल क्या है? ये है कंपाउंड वर्ड। जब दो लफ्ज़ आपस में मिल जाते हैं, जैसे फिंगर, फिंगर एक लफ्ज़ है और इसके साथ नेल जब लगाएंगे तो फिंगर नेल। फिंगर का क्या मतलब है कि मेरी फिंगर, मेरी उंगली का नाखून टूट गया है। इसमें आएगा फिंगर नेल, उंगली का नाखून। प्लीज़ स्विच ऑन द फ्लैश लाइट ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। मेहरबानी करके आपका जो है मोबाइल फ़ोन की लाइट बंद कर दें। फ्लैश लाइट, इसमें क्या होगा? कंपाउंड वर्ड क्या होगा? फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट को हम एनसर्कल करेंगे। वेयर इज़ माई आर्म चेयर आई हैड पुट इट देयर। मेरी जो आर्म चेयर है, बाजू वाली चेयर है, कुर्सी है, वो कहाँ है? मैंने उसको उधर रखा था। आर्म चेयर, इसमें क्या है? आर्म चेयर कंपाउंड वर्ड है, इसको हम एनसर्कल करेंगे। येस्टरडे आई सॉ अ हाउस ऑन फायर। मैंने आज एक घर में आग लगी हुई देखी। देन फायर फायर फाइटर केम एंड पुट आउट द फायर। फायर फाइटर, इसमें फिर जो थे फायर से लड़ने वाले आए और उन्होंने आग बुझा दी। फायर फाइटर इसमें आएगा, कंपाउंड वर्ड है, इसको हमने एनसर्कल करना है। फिर होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स। होमोफोन वो वर्ड्स होते हैं बच्चों जो कि डिफरेंट, उनकी जो आवाज़ है वो एक जैसी होती है लेकिन उनके मीनिंग्स मुख्तलिफ होते हैं। एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स उन्होंने दी है होमोफोन्स और सेंटेंसेस। वेदर, WEATHER, वेदर। वेदर किसको कहते हैं? मौसम को कहते हैं। टूडेज़ वेदर इज़ सो हॉट। आज मौसम बहुत गर्म है। अच्छा, वेदर, फिर वेदर, WHETHER, वेदर। जबकि या जैसे कि के माने में होता है आई डोंट नो वेदर शी विल शी विल केम टू ज्वाइन और नॉट। मैं ये नहीं जानता कि आया वो आपके साथ, आपके से मिलेगी या नहीं। सीन, SEEN, सीन में होता है देखना। हैव यू सीन दैट बुक? क्या आपने ये बुक देखी है? क्या आपने कोई बुक देखी है? सीन, SENE, सीन का मतलब होता है नज़ारा। द नेचुरल सीन ऑफ सनराइज इज़ ब्यूटीफुल। जो है सनराइज, सूरज तुलुए आफ्ताब का जो सीन है बहुत खूबसूरत है। आगे है हर्ड का मतलब है आई सी आ हर्ड ऑफ कॉज गोइंग टूवर्ड्स द फील्ड। हर्ड मैंने सुना, मैंने सुना, मैंने गायों को, बहुत सारी गायों को क्या खेत में जाते हुए सुना। आई सी आ हर्ड कॉल को सुना, उनके कॉल को देखा। हर्ड सुनना। हैव यू हर्ड टुडेज़ ब्रेकिंग न्यूज़? क्या आपने आज की खबरें सुनी हैं? देयर, वहाँ। देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल, वहाँ कोई बुक, किताब नहीं है मेज़ के ऊपर। देयर उनके। डोंट टेक दीज पेन्स, दीज आर देयर्स। ये
पेन्स ना, ये कलम ना लेना क्योंकि वो उनके हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। अब ये उन्होंने आगे करेक्ट वर्ड्स 2 दिए हुए हैं और इनमें से 2 करेक्ट हैं, वो हमने ब्लैंक्स में लिखना है बच्चों। आई एम नॉट डैश टू गो टू मार्केट अलोन। आई अलाउड, ये आएगा आई अलाउड go to the market alone. Who dash my pancakes? Who ate my pancakes? Sorry. The air dash of turkey is very high. The airfare यानी किराए, the airfare of turkey is very high. Please move dash, please move forward ये वाला। Can you please dash the cheese for me? Can you please grate यानी मुझे ग्रेट कर दोगे चीज़, क्या आप मुझे चीज़ ग्रेट करके दे सकते। नेक्स्ट ग्रामर नॉन्स। अ नॉन इज़ अ नेमिंग वर्ड। इट कैन बी द नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, एनिमेट और इनएनिमेट और फीलिंग्स। इनएनिमेट फीलिंग्स, इसमें एनिमेट और फीलिंग्स भी आ जाएंगी। नॉन क्या होता है बच्चों? नॉन होता है कि इस जो किसी चीज़, शख्स, जगह और किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन का नाम हो, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन बोलते हैं। उसकी एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं, बुक, अहमद, लाहौर और लव जो है वो फीलिंग्स में आएगा। टाइप्स ऑफ नॉन्स की किस्में हैं। अब देर आर मैनी टाइप्स ऑफ नॉन्स, बहुत सारी किस्में हैं इसकी। कॉमन नॉन किसको कहते हैं? इसम मारफा को कहेंगे उर्दू में। और प्रॉपर नॉन इसम नकरा और प्रॉपर नॉन इसम मारफा। कलेक्टिव नॉन जो है वो जिनको शुमार हम कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, उनको हम कलेक्टिव नॉन कहते हैं। और कॉन्क्रीट नॉन और फिर है ऑब्स्ट्रैक्ट नॉन जिसकी कोई मायने ना हो। कॉमन नॉन, अ नॉन हु डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और thing but is common to all person or things of the same class or kind is called a common noun। यानी कॉमन नाउन वो होता है कि जो किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो और उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं। नेम में क्या आ जाएगा? बॉय, मैन और टीचर, लेडी। प्लेस में आ जाएगा स्कूल, पार्क, सिटी और क्या है? हॉस्पिटल। थिंग्स, पेन, बुक, नीडल्स और पेंसिल। ये सब कॉमन नोन में आएंगे जो कि कॉमन चीज़ें होती हैं, जो हमारे बैग्स जो हम यूज़ करते हैं उसको हम कॉमन नॉन कहते हैं। प्रॉपर नॉन, अब प्रॉपर नॉन आ जाएगा। अ प्रॉपर नॉन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। इट ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जो प्रॉपर नॉन होता है वो किसी ख़ास जगह, ख़ास शख्स, चीज़, जगह और चीज़ का नाम होता है।
जैसे जो वो कॉमन नहीं होता, जो कि एक एक ही होता है, उसकी हमने एग्जांपल्स दी हुई हैं। नेम अलामा अलामा इकबाल, फिर है इसाक ढार, इसाक नवा न्यूटन और अहमदवी। ये प्रॉपर नॉन में आएगा क्योंकि हुजूर नबी करम का नाम है। और फिर आगे है सियालकोट या इस तरह की ये क्या लिखा हुआ है नज़र नहीं आ रहा। ये है शकील। फिर है प्लेस लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान। फिर है आगे थिंग्स हैं, टोमेटो केचप है। फिर है PIA एयरलाइन। फिर बारबी डॉल ये भी कॉमन प्रॉपर नॉन में आएगा क्योंकि बारबी डॉल्स जो होती हैं वो आम नहीं होती। कलेक्टिव नॉन, अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन। ये देखें, जो ऐसी चीज़ें कि जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स और थिंग्स बिटवीन एज अ होल। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। और अनकलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं कि जिनको हम काउंटलेस वो होते हैं। अब उन्होंने आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव ऑफ पर्सन, आर्मी, पार्टी और क्लास। बहुत सारे जब आर्मी के मैन हों तो उसको आर्मी बोलेंगे। पार्टी में भी बहुत सारे जब लोग जमा होते हैं तो उनको फिर पार्टी कहलाते हैं। क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, फ्लॉक, हर्ड और क्या है, ग्रुप। और फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स क्या है, डोजन, बंच और बंडल। ये सारे कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। अब आगे कॉन्क्रेट नॉन कैन बी डिकेटेड एंड फेल्ट विद ओवर 5 सेंसेस। 5 सेंसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉन्क्रिएट नॉन उसको कहेंगे। और फिर वी कैन टच और स्मेल देम। जैसे टाइगर का हमें खौफ आता है, हम उससे डरते हैं। और फिर हाउस, टीचर और एरो वगैरह ये सारे इसमें आ जाएंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ स्टेट। किसी भी कंट्री का नाम या किसी भी क्वालिटी, एक्शन और फीलिंग्स और एन आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील अबाउट, वी कैन नॉट टच और सी। ऐसी चीज़ जिसको कि हम ना देख सकते हैं और ना उसको टच कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे विंड, इसमें विंड भी आ सकती है और रेन वगैरह, इसको इस तरह की चीज़ें। फिर एग्जांपल जिसकी हम देते हैं, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ क्या है, सच्चाई को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते और ना इसको टच कर सकते हैं। फिर आगे है काइंडनेस इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड। काइंडनेस क्या है, हमदर्दी भी एक ऐसा जज्बा है कि जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको देख और टच नहीं कर सकते। काइंड स्लोमन इज़ नॉन फॉर हिज
विजडम, और विजडम भी अक्लमंदी जो है वो भी हम उसको महसूस कर सकते हैं। अगर कोई अपनी अक्लमंदी ज़ाहिर करे तो फिर उसको हम महसूस करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, ना उसको टच कर सकेंगे। अच्छा, अंडरलाइन द नोन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम in their respective column रिस्पेक्टिव कॉलम कहाँ पे दिए हुए इन्होंने? एलिशबा इज़ आ गुड गर्ल, एलिशबा, और ये इनके अंदर हम अंडरलाइन करेंगे। वन शुड बिलीव इन द क्या है, ट्रूथ। आई सॉ अ banquet of flowers at a flower shop। इसमें 3 जगह पे हमने सर्कल करना है, बैंक्वेट और फ्लावर्स और शॉप के ऊपर। द केस वाज डिसाइडेड बाय अ बेंच ऑफ जजेस। ये सारा ये इसको हमने सर्कल करना है। लाहौर इज़ आ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस। फेमस लाहौर को भी हमने करना है और फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी करना है। देर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स को करना है और क्लास को करना है। आगे फिर है कि येस्टरडे आई सॉ अ बिग ब्लू व्हेल स्विमिंग इन द वाटर। अच्छा, स्विमिंग इन द वाटर, ब्लू व्हेल को आपने अंडरलाइन करना है, फिर वाटर को अंडरलाइन करना है। और अफशान इज़ आ वंडरफुल टेनिस प्लेयर, अफशान को करना है और फिर टेनिस प्लेयर का करना है। ये हमने इन कॉलम्स में ये लिखना है। कॉलम्स में क्या लिखेंगे? अफशान। अलिशबा क्या आएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा अलिशबा, क्योंकि ये कॉमन नेम नहीं है। और फिर कॉमन नाउन में गर्ल, फ्लावर्स, और फिर आएगा कलेक्टिव नाउन में आएगा शॉप। और फिर इस तरह इसमें यहाँ से हमने पढ़ा था जैसे बैंक्वेट फ्लावर्स, यहाँ पे लिखा जाएगा बैंक्वेट फ्लावर्स। फिर लाहौर है, ये प्रॉपर नाउन में आएगा। हिस्टोरिकल, ये प्रॉपर नाउन में वेल और टेनिस, ये सारी प्रॉपर नाउन में आएगी। कॉमन नाउन में आएगा फ्लावर, प्लेस, स्टूडेंट, क्लास, और वाटर, अफशान, ये सारे आ जाएंगे। फिर ये है आगे कलेक्टिव नाउन में शॉप, फ्लावर्स आ जाएंगे, और बैंक्वेट ये भी फ्लावर, ये भी कॉमन कलेक्टिव नाउन में आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। और फिर बैंक्वेट, जंगल, ये सारे ट्रुथ, ये क्या है? एब्स्ट्रेंस नाउन है ये सारा। आपने ऐसे फिर एक कॉलम बनाकर ये लिखना है और अपने नीट कॉपीज़ पे इनको कुछ नीटली लिखना है। यूज़ ऑफ पोस्ट modifiers after nouns। पोस्ट modifiers give extra or specific importance about the noun, e.g. place, possessions and identifying features। एग्जाम्पल्स हैं इनकी। when Banish, our teacher, give us many tasks। Our teacher, the man in the blue shirt is my neighbor। We have come here to see the boy who was in
injured in the attack. Uncircle the post modifier in the following sentence. The house across the street is. ये बच्चों आपने खुद करना है, इसकी तरफ देख इसका पैटर्न देख के आपने ये खुद करना है. अच्छा, नो योर वो लेसन इज हैव फिनिश्ड. You subscribe me, like me, and like my channel, and comment the comments in the comment section after see the full lesson.